السلام علیکم دوستو، میں ہوں خلیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن وتھ خلیل۔ لرن تیلگو لینگویج بیسک ورڈز فار بگنرز، لرن وتھ خلیل۔ اگر آپ تیلگو زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اردو، ہندی اور انگلش زبانوں کی مدد سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آج ہم سیکھیں گے روزمرہ کے اہم الفاظ بہت آسان طریقے سے۔ ضمائر، ضمیر، پروناؤنس جسے کہتے ہیں نا، میں اردو میں، میں ہندی میں، انگلش آئی، تیلگو میں کہیں گے اس کو نینو، نینو۔ اردو میں کہیں گے میں، انگلش میں کہیں گے آئی، ہندی میں بھی کہیں گے میں، تیلگو میں وہ لفظ ہے نینو، میں، نینو۔ اسی طرح مجھے اگر کہنا ہو، مجھ کو، اردو میں اگر مجھ کو کہنا ہو تو وہ تیلگو میں ہوگا ناکو، مجھے چاہیے، ناکو کاوالی۔ ہاں، یہ اس طریقے سے ٹو می، گیو اٹ ٹو می کہتے ہیں نا، مجھے وہ دو، مجھے دیجیے، مجھے ہندی میں مجھ کو، مجھے، اور انگلش میں ٹو می، تیلگو میں اسے کہیں گے ناکو، ناکو، مجھے، مجھ کو، ٹو می۔ اسی طرح سامنے والے کے لیے تم یا آپ، رسپیکٹ دیتے ہوئے بات کریں گے، اسے کہیں گے آپ، نوو۔ انگلش میں سبھی کے لیے ایک ہی لفظ ہے یو، وہ چاہے تم کہو، آپ کہو یا تو کہو، سب ایک ہی ہے لفظ انگلش میں۔ جیسے عربی میں ہے انتا، وہ سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سنگولر میں کسی کے لیے بھی، سنگولر پلورل سبھی کے لیے استعمال ہوتا ہے انتا۔ اسی طرح جو ہے ہندی میں تم ہے، ہندی میں بھی اور اردو میں بھی جو ہے ریسپیکٹ دیتے ہوئے، ادب سے، بہترین پولائٹ لینگویج میں اگر کہنا ہو تو آپ کہیں گے۔ یہاں جو ہے نوو ہے جو عام استعمال ہونے والا ہے، میرو بولنا چاہیے بہت ریسپیکٹ دیتے ہوئے، میرو، میرو الا النارو، آپ کیسے ہیں، تم کیسے ہو، ایسے بھی ہو سکتا ہے، برابر والے سے بات کرنے کے لیے تم کیسے ہو بول سکتے، لیکن اگر ریسپیکٹ دیتے ہوئے بات کرنا ہو تو میرو الا النارو بولنا چاہیے، ہاؤ آر یو، اس طریقے سے تم یا آپ، تم کو، یا ہم کہیں گے آپ کو، تمہیں، آپ کو، ٹو یو، انگلش میں ٹو یو۔ اسی لیے اسی طرح سے عربی میں ایسے ہی ہے لفظ جو ہے ایسے ہی ہے، تیلگو میں اسے کہیں گے نیکو، یہ جو ہے عام لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لیکن اگر ریسپیکٹ دیتے ہوئے بات کرنا ہو، اپنے ایلڈر سے یا اپنے باس وغیرہ سے بات کرنا ہو تو اسے کہیں گے میرو، میرو، میرے لا النارو، میرو باغ النارا، آپ اچھے ہیں کیا، آپ کیسے ہیں، اس طرح ہاؤ آر یو، یہ جو ہے نا لفظ میکو کہنا چاہیے، نیکو کے بجائے میکو کہنا چاہیے۔ نیکو بھی جو ہے برابر والے کو بات کرنے کے لیے عام، بالکل بے تکلفی سے جس سے بات کرتے ہیں نا، اس کو نیکو بول سکتے ہیں اس طریقے سے۔ اسی طرح ہم ہے، وی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا وی، تو انگلش میں کہیں گے میمو، ہم تمام، میں مندرمو، میمو، میمو کہیں گے ہم کو، جو ہے تیلگو میں میمو کہیں گے۔ آپ اس کا دیکھیے کیسا ہے، ماں کو اے تم ہے، اس کے بعد ماں کو کمو ہے، میں مو، اے کی ماترا اور او کی ماترا، میں مو، میں مو، ہم، وی، انگلش میں، تو اس کو کہیں گے میمو، میمو اندرمو، ہم سب اچھے ہیں، میں مندرمو باغ النامو۔
ऐसे ऐसे बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। मैं मंदरमु पार्क को వెళ్ళాము, हम पार्क को गए थे। ऐसा इस तरीके से। अब ये लफ्ज है वो, उर्दू में हम कहेंगे वो, इंग्लिश में ही शी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और तेलुगु में दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज है। अतनु आमे, अतनु जो है ही, आमे जो है शी, इस तरीके से अतनु ही आमे शी। लेकिन उर्दू में औरत और मर्द दोनों के लिए, फीमेल और मेल के लिए दोनों के लिए एक ही लफ्ज है। आमे बागुंदी, अतनु बागुन्नाडु, अतनु मंचिवाड़ू, वो अच्छा आदमी है। आमे चाला मंचिदी, अगर ऐसे कहेंगे कि वो औरत अच्छी है, वो, इस तरीके से ही शी दो अलग अलग लफ्ज आते हैं इंग्लिश में भी और तेलुगु में भी, औरत के लिए और मर्द के लिए। अतनु जो है मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, आमे औरत के लिए इस्तेमाल होता है। अतनु ही, आमे शी, इस तरीके से। आप जो है दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी यू। इसी तरह तेलुगु में मीरू है, मीर एला उन्नारू, आप कैसे हैं, इस तरीके से मीरू तेलुगु में। मीरू यानी आप सब हो सकता है। जैसे हम बहुत सी बातों में अल्फाज बना सकते हैं ना इसके, मीरेला उन्नारू, मीरेक्कड़िकेल्लारू, आप कहाँ गए थे, एक्कड़िकेल्लारू बोले तो आप कहाँ गए थे। मीरू एला उन्नारू, आप कैसे हैं, ये जमा भी हो सकता है और मफरद भी हो सकता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों भी हो सकता है। मीरू आप, जैसे यू भी है इंग्लिश में, ये तमाम जो है प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो है रिस्पेक्टफुल लफ्ज है, मीरू जो है नुवू के बजाय मीरू बहुत अच्छा लफ्ज है, बहुत रेस्पेक्ट दिए जैसा होता है मीरू। इसी तरह दूसरा पार्ट है ठीक है, ओके, इसको तेलुगु में कहेंगे सरे, सरे, ठीक है, ओके, ओके जो कहते हैं ना सरे, इस तरीके से। सरे मंचिदी यानी ठीक है, अच्छा है, सरे मंचिदी ओके, यानी किसी चीज को एक्सेप्ट करना हो तो ओके, जैसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, हम जो कहते हैं उर्दू में ठीक है, तो तेलुगु में कहेंगे सरे। अब उसका देख लिए, सा और रा को एक ही मात्रा है, सरे, ओके। उसके बाद नहीं है लफ्ज, उर्दू का लफ्ज है नहीं, इसको हिंदी में भी नहीं कहेंगे, इंग्लिश में नो कहेंगे। तेलुगु में उसके लिए लफ्ज है कादू, लेदू, कादू, ऐसा। अधि कादू बोलते हैं ना, वो नहीं, वो नहीं, वो चीज नहीं, अधि कादू, ओके। तो ये इस तरीके से कादू नहीं, लेदू नहीं, उसके लिए भी नहीं है कहने के लिए लेदू कहेंगे, और कादू कहेंगे नहीं है, नहीं। इसी तरह नहीं चाहिए, उर्दू में जो लफ्ज है नहीं चाहिए, हिंदी में भी वही लफ्ज है नहीं चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे डोंट वांट। तो ये जो है वद्दू, तेलुगु में वद्दू है, वाह, और उसके बाद दाकू कुम्मू है और दावत्तू है, दाकू ऊ की मात्रा है, दावत्तू है, वद्दू नहीं चाहिए, मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नाकू अधि वद्दू, नाकू वद्दू दोनों भी हो सकता है, नाकू वद्दू नहीं चाहिए, वद्दू, इस तरीके से नहीं चाहिए, डोंट वांट, नहीं चाहिए। उसके बाद रिस्पेक्टफुल अंदाज में बुलाना हो किसी को, जैसे हम कहते हैं उर्दू में आइए, प्लीज कम, इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना प्लीज कम, तो इंग्लिश में तेलुगु में है उसका लफ्ज रंडी, रंडी कूरचोंडी, बाउंदारा, इस तरीके से मुख्तलिफ जो है अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना वेलकमिंग के लिए।
जब किसी का इस्तकबाल करते हैं तो हम उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंदाज में बोलेंगे रंडी, आइए, प्लीज कम, इसको कहेंगे रंडी, प्लीज कम, आइए। इसी तरह जाइए, प्लीज गो, वेल्लंडी। जैसे हम किसी को भेज रहे हों कहीं तो बोलेंगे हम, बहुत ही ये रेस्पेक्टफुल अंदाज है। वेल्लू बोले तो जो है वो आम लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला, या हमारे बराबर के लोगों को या अपने बच्चों को बोलने के लिए वेल्लू बोल सकते हैं आप, जाओ। लेकिन ये जो है वेल्लंडी बहुत अच्छा लफ्ज़ है, रेस्पेक्टफुल, यानी बहुत ज़्यादा अदब से बोलने का किसी बड़े आदमी के लिए, वेल्लंडी, पोंडी, ऐसा। वेल्लंडी, ये ला है, ला जो है और किसी जबान में नहीं आता, ये इसको मोटा पढ़ना पड़ता, वेल्लंडी, वेल्लंडी। ला जो है तेलुगु के अलावा पता नहीं दूसरे साउथ के लैंग्वेज में है नहीं है वो तो नहीं मालूम, लेकिन दूसरे इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में नहीं है लफ्ज वेल्लंडी। जाइए, ऐसा। खाइए, प्लीज ईट। तिनंडी, ये भी जो है बहुत ही अदब से, बहुत ही यानी यानी बहुत इज्जत से बोलने वाला लफ्ज है, बोला जाने वाला लफ्ज है। किसी के लिए भी जो है जिसको इज्जत देना है उन्हें हम कहेंगे आइए, खाइए, खाना खाइए। अन्नम तिनंडी, 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 तेलुगु में उसको तिनंडी बोलेंगे, प्लीज ईट, या हिंदी में खाइए, उर्दू में भी खाइए। अब ये लफ्ज है पीजिए, पीना, यानी पानी पीना, प्लीज ड्रिंक। हम कोई मशरूब देंगे या नींबू का रस या आम का रस वगैरह ऐसा कुछ देना है, कोई मेहमान आते हैं हमारे पास, तो उनको जब हम देंगे ना तो उस वक्त कहेंगे प्लीज ड्रिंक, तागंडी, पीजिए। हम शरबत पेश करके उनको कहते हैं पीजिए, लीजिए, पीजिए, तो उसको तेलुगु में कहेंगे तागंडी, पीजिए, इसको प्लीज ड्रिंक। ड्रिंक भी बोल सकते हैं, यानी बिल्कुल सादा सा लफ्ज है ड्रिंक, लेकिन ये तागंडी जो लफ्ज है बहुत ही एहतराम के साथ बोलने वाला लफ्ज है, बहुत ज्यादा इज्जत देने वाला लफ्ज है। तागंडी, तागंडी, पीजिए, प्लीज ड्रिंक। इसी तरह मेरे साथ दोहराए, मैं, इंग्लिश में कहेंगे आई, तेलुगु में कहेंगे नेनु। तुम या आप, इज्जत के साथ बोला जाने वाला लफ्ज। यू, यहाँ नुव्वु दिए हैं, यानी तुम के बराबर का लफ्ज है नुव्वु, लेकिन हम रेस्पेक्ट देंगे तो उसको कहेंगे मीरू, रेस्पेक्ट वाला लफ्ज है मीरू। तुम, यू, नुव्वु, आप, मीरू, आप के बराबर का लफ्ज है मीरू, यहाँ तुम के बराबर का लफ्ज है नुव्वु। हम, अब ये दोनों के लिए, हर हर किसी के लिए एक ही लफ्ज है ये। हम, वी, मेमू, मेमू, हम सब, मेमू। हम जब कहेंगे वी, मेमू। इसी तरह नो, नहीं जो कहते हैं ना, नहीं, तो कादू है, तेलुगु में उसका लफ्ज है कादू। इसी तरह आइए, हम कहते हैं ना आइए, कम, तो इसके लिए तेलुगु में लफ्ज है रंडी। ये बहुत ही एहतराम के साथ किसी को बुलाते हैं तो तेलुगु में कहेंगे रंडी। बार बार रिपीट करें, बार बार इसको याद करते जाएं मुस्तकिल तौर पर, तो एक एक लफ्ज को आप 10-10 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखते रहिए, वीडियोस के लिए देखते रहिए लर्न विद खलील। उरूज एक्सेलेंस है मेरे चैनल का नाम। अल्लाह हाफिज़।